آداب، یہ ہے اعتماد کی خبریں۔ سب سے پہلے پیش سرخیاں۔ فڈنویس مہاراشٹر کے نئے وزیر اعلیٰ، 2 نائب وزرائے اعلیٰ کی آزاد میدان میں حلف برداری تقریب۔ ہریش راؤ سمیت BRS کے کئی اہم قائدین گرفتار۔ پولیس اسٹیشن میں گڑبڑ کرنے کے الزام میں BRS رکن اسمبلی کوشک ریڈی کو ریمانڈ۔ 9ویں جماعت کے 3 طلباء کے حملے میں ایک ٹیچر کی موت۔ AP کے رائے چوٹی گورنمنٹ اردو میڈیم ہائی اسکول میں افسوسناک واقعہ۔ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین کی حیثیت سے وینکٹیشم نے لیا جائزہ، کمیشن کو شفاف بنانے کا کیا عزم۔ BRS اور BJP کے اہم قائدین کی کانگریس میں شمولیت، PCC صدر مہیش کمار گوڈ نے کیا خیر مقدم۔ سرخیوں کے بعد اب پیش ہے خبروں کی تفصیلات۔ BJP لیڈر دیویندر فڈنویس نے آج ممبئی کے آزاد میدان میں 5 سال بعد دوبارہ مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لیا۔ حلف برداری تقریب میں وزیر اعظم نریندر مودی نے شرکت کی۔ ایکناتھ شنڈے اور اجیت پوار نے مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لیا۔ مہایوتی لیڈروں کے ساتھ مرکزی وزراء امیت شاہ، راجناتھ سنگھ، JP نڈا اور دیگر اعلیٰ BJP لیڈران سٹیج پر موجود تھے۔ ممبئی میں منعقدہ شاندار تقریب میں بالی ووڈ کے سرکردہ ستاروں بشمول شاہ رخ خان، سلمان خان اور رنبیر کپور نے بھی شرکت کی۔ دیویندر فڈنویس، جنہوں نے آج تیسری بار چیف منسٹر کے طور پر حلف لیا، اپنی ماں کے ماتھے پر تلک لگاتے ہوئے ایک تصویر شیئر کی۔ آزاد میدان میں حلف برداری کی تقریب میں تقریباً 40,000 افراد نے شرکت کی۔ देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांना वंदन। गुरुवर्य धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांचं स्मरण आणि देशाचे कर्तबगार आणि लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी व देशाचे कणखर गृहमंत्री अमितभाई शाह यांच्या भक्कम पाठिंब्याने, आशीर्वादाने तसेच राज्यातील 13 कोटी जनतेच्या आशीर्वादाने मी अजित आशाताई अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व آندھرا پردیش کے انامیا ضلع میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں اردو میڈیم ہائی اسکول کے 9ویں جماعت کے 3 طلباء نے کلاس روم میں استاد پر حملہ کرتے ہوئے ان کو ہلاک کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق رائے چوٹی ضلع پریشد اردو ہائی اسکول کے استاد 42 سالہ اعجاز معمول کے مطابق چہارشنبے کے روز 9ویں جماعت کی کلاس لینے کے لیے پہنچے۔ کلاس میں طلباء نے شرارت کرنے پر اعجاز نے انہیں ڈانٹا، جس پر طلباء غصے میں آ کر استاد پر حملہ کر دیا۔ حملے کے دوران طلباء نے استاد کو سینے پر مارا، جس کے نتیجے میں وہ کلاس روم میں ہی بے ہوش ہو کر گر گئے۔ دیگر استاد نے فوراً انہیں ہسپتال منتقل کیا، لیکن علاج کے دوران اعجاز کی موت ہو گئی۔ پولیس نے اس واقعے میں مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔
రగిలిపోతుంది మేడం. నాకైతే నాకు కావడం దూరం దూరం తిరుగుకుంటున్నా. తాకడానికి లేదు మా ఆయన 2 సార్లు తాకడానికి లేకుండా చేశారు. ఆయన 11 MSCL మిగిలిస్తాడు మేడం ప్రతి సంవత్సరం డిసెంబర్లో. అట్లాంటి ఆయన పట్టుకొని చంపినారు. ఏం చేయాలి? ఇట్లా మన చేతులు ఎట్లా మేడం ఇట్లు కొట్టి కొట్టి ఇంత చిన్నపిల్లలు కొట్టారు మేడం. అట్లా కొట్టారు. ఏం చేయాలి చెప్పండి? వాళ్ళకి చేతులకి ఏం వచ్చింది? వాళ్ళకి చేసిన పాపం ఏంది? మేము కొట్టి కొట్టి చంపుతారు మేడం టీచర్ని. ఈడ ఈడ అన్ని మొత్తం గాయాలున్నాయి మేడం. ఏం చేస్తారు చూడండి మేడం ఎట్లా చేస్తారు. चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा कि आइंदा 2 बरसों में 3000 इलेक्ट्रिक बसें आवाम के लिए दस्तयाब की जाएंगी। इन्होंने ये बात हैदराबाद में NTR मार्ग पर मुनक़िदा अवामी जलसे में कही, जो अवामी हुक्मरानी की कामयाबों के जश्न का हिस्सा था। इन्होंने बताया कि हैदराबाद को माहौलियाती मसाइल से बचाने के लिए स्क्रैप पॉलिसी मुतारफ़ कराई जाएगी और इसी के तहत इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए रजिस्ट्रेशन और टैक्स में छूट दी जाएगी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि बस ड्राइवर्स और कंडक्टरों को हुकूमत की 6 गारंटी स्कीम्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। इन्होंने दावा किया कि नुकसान में चलने वाला RTC अब मुनाफे में आ चुका है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मूसी नदी की सफाई के लिए अवामी ताउन की ज़रूरत है। इन्होंने कहा कि 1 साल के अंदर इनकी हुकूमत ने 55,143 मुलाजिमतें फराहम की हैं। ఈ రోజు ఆర్టీసీ బస్సులు 3000 ఉన్నాయి. ఈ 3000 బస్సులు దాదాపుగా 90% డీజిల్ మీద నడుస్తున్నాయి. ఈ 3000 బస్సులు డీజిల్తో ఇట్లనే నడుస్తే కాలుష్యాన్ని నియంత్రించలేము. అందుకే రాబోయే 2 సంవత్సరాలలో అన్ని ఆర్టీసీ బస్సులను ఔటర్ రింగ్ రోడ్ అవతలికి పంపించి 3000 ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు కొని ఈ హైదరాబాదు నగరాన్ని కాలుష్య రహిత నగరంగా చేయడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అన్ని విధాలుగా ప్రయత్నం చేస్తుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారం తీసుకుంటుంది. తొందరలోనే 2 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసే లోపల 3000 ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను కొని హైదరాబాదు నగరంలో ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు లోపల డీజిల్తో నడుస్తున్న అన్ని బస్సులను ఇతర ప్రాంతాలకు తరలించి ఈ నగరాన్ని రక్షించడానికి పూర్తిగా ప్రయత్నం చేస్తాము. ఆ దిశగా నేను మీకు హామీ ఇస్తున్నా. అదేవిధంగా 2వ భాగం కార్లు, ఊబర్ కానీ ఇతర ట్రాన్స్పోర్ట్లో నడిచేటివి. ఆ తర్వాత ఆటోలోళ్ళు పాపం గిట్టుబాటు ధర లేక డీజిల్ బదులు కిరోసిన్ పోసి నడుపుతున్నారు. పట్టుకుంటే ఒక బాధ, పట్టుకోకపోతే ఇంకో బాధ. ఫైన్ వేస్తే ఓ బాధ, ఫైన్ వేయకపోతే ఇంకొక బాధ. వేస్తేనేమో సంఘాలు వస్తాయి, వేయకపోతేనో అధికారులు మిమ్మల్ని తిడతారు. రవాణా శాఖకే ఉంది. పట్టుకోకపోతే ఎలక కోపం, ఇడిచిపెడితే పిల్లి కోపం అన్నట్టు 2 దిక్కుల మీకే ఇబ్బంది ఉంది. అందుకే ఇవాళ నేను మా రవాణా శాఖ మంత్రి గారికి సూచన చేస్తున్నా, ఈ డీజిల్ ఆటోలు అన్నిటిని కూడా ఔటర్ రింగ్ రోడ్ అవతలికి పంపించండి. వాళ్ళందరూ ఎలక్ట్రిక్ ఆటోలు కొనుక్కుంటే వాళ్ళకి ఏ రకంగా మనం ప్రత్యేక పథకాలు ఇవ్వగలమో వాటిని మీ అధికారులతో మాట్లాడి ఒక ప్రణాళిక తీసుకురండి. ప్రతి పేదవాడు ఎలక్ట్రిక్ ఆటో కొని హైదరాబాదు నగరంలో నడుపుకుంటే వాళ్ళని ఏ విధంగా ఆదుకోవాలనో ఒక ప్రత్యేకమైన పథకం తీసుకురండి. ఈ నగరంలో తిరుగుతున్న డీజిల్ ఆధారిత ఆటోలు అన్నిటిని కూడా నగరం బయటికి పంపించడం. चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि गरीबों को इज्जत नफ्स के साथ ज़िंदगी गुजारने का मौका फराहम करना इनकी हुकूमत का मकसद है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का और दीगर वज़रा के साथ मिलकर इन्होंने इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम का मोबाइल ऐप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इंदिरा गांधी ने कई दिहाइयों कबल गरीबों के लिए मकानात और ज़मीन तकसीम किए थे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि मुल्क में ऐसा कोई गांव हो सकता है जहां मंदिर ना हो, लेकिन ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां इंदिरम्मा कॉलोनी नहीं है। इन्होंने बताया कि ये स्कीम जो इब्तदाई तौर पर 10,000 रुपये के साथ शुरू की गई थी, अब 5 लाख रुपये तक पहुंच चुकी है। हुकूमत हर गरीब को घर की तामीर के लिए 5 लाख रुपये माली मदद फराहम कर रही है। इन्होंने कहा कि ये सिर्फ मुस्तहिक अफराद को ही मकानात दिए जाएंगे। पहले मरहले में 4.5 लाख मकानात की तामीर के लिए इंतज़ामी मंजूरी दी गई है।
వాళ్ళు సొంత ఇంటి కళను నెరవేర్చే విధంగా ఇండ్లు కట్టుకోవడానికి అన్ని రకాలుగా నాకు తెలిసి 10,000 రూపాయలతో మొదలుపెట్టి మొదట్లో 4 తాటాకులు 10 వెదర్ బొంగులు 4,000 రూపాయల నగదుతో మొదలైన ఇందిరమ్మ ఇల్లు కాలక్రమేణా రాజశేఖర రెడ్డి గారు వచ్చే వరకు 1,25,000కు పెరుగుకుంటూ వచ్చింది. ఈరోజు ప్రజాప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత 5 లక్షల రూపాయలకు పెంచడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఈరోజు పెరిగిన ధరలు పేదవాడి అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రతి పేదవాడికి 5 లక్షల రూపాయలు ఉచితంగా ఇచ్చి వాళ్ళకి ఇండ్లు కట్టుకోవడానికి ప్రభుత్వం అండగా నిలబడాలన్న ఆలోచనతోని ఈ పథకాన్ని తీసుకొచ్చినాం. ఇదే కాదు, గతంలో ఇందిరమ్మ ఇండ్లు కొన్ని లోన్ల ద్వారా పేదలకు ఇచ్చిన ఇండ్లు ఉన్నాయి. ఆ ఇళ్లకు కూడా వాళ్ళ లోన్లు ప్రభుత్వమే తీర్చి ఈరోజు 7,000 కుటుంబాలకు ఆ లోన్ల నుంచి కూడా విముక్తి కలిగే నిర్ణయం తీసుకున్నాం. వాళ్ళ సొంత ఇంటి కళ ఈరోజు వాళ్ళకు రుణ విముక్తి చేయడం ద్వారా ప్రభుత్వం ముందుకు సాగుతున్నది. तेलंगाना हुकूमत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी शेड्यूल्ड कास्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एन सुरीधर को प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे तालीम के तौर पर मुकम्मल इजाफी चार्ज दे दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी की जानिब से एक हुक्म जारी किया गया। ये हुक्म एक ऐसे वक्त सामने आया जब स्पेशल चीफ सेक्रेटरी महकमे तालीम बी वेंकटेशम ने 4 शंबे को रजाकाराना सबकदोशी ले ली, क्योंकि इन्हें हाल ही में तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन मुंतखब किया गया था। तेलंगाना के साबिक वजीर व सीनियर बीआरएस लीडर टी हरीश राव को पुलिस ने कुंडापुर में बीआरएस एमएलए कौशिक रेड्डी की रिहाइशगाह के करीब गिरफ्तार कर लिया। इन्हें गच्चीबौली पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। जुमेरात की सुबह हरीश राव कौशिक रेड्डी से मुलाकात के लिए गए थे, जिनके खिलाफ पुलिस ने 4 शंबे को बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज करते हुए इन पर अपने फ़राइज़ में खलल डालने का इल्ज़ाम लगाया था। ताहम कौशिक रेड्डी को गिरफ्तार करने के लिए बड़ी तादाद में तैनात पुलिस ने हरीश राव को इनसे मिलने की इजाज़त नहीं दी। इस मौके पर हरीश राव और पुलिस मुलाजिमीन के दरमियान गर्मा गर्म बहस हुई, जिन्होंने बादअज़ां इनको गिरफ्तार कर लिया। हरीश राव के साथ आने वाले बीआरएस लीडर्स ने पुलिस की गाड़ी को रोकने की कोशिश की, जिसमें इनको नाकामी मिली। वज़ीर माहौलियात व जंगलियात कोंडा सुरेखा ने रियासत की असल अपोजिशन बीआरएस पर शदीद नुक्ताचीनी की। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीआरएस के लीडरों को इख्तिदार से महरूमी के बाद कारकुनों की याद आती है जो इनके मफादात की बात करते हैं। इन्होंने कहा कि कोमट रेड्डी बरादरान के बारे में इज़हार ख्याल करने का इख्तियार बीआरएस के लीडरों को नहीं है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए चलाई गई तहरीक के दौरान कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था। कोंडा सुरेखा ने हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी कभी भी गिरोहबंदी की सियासत नहीं करती। इन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को फार्म हाउस से बाहर आकर बात करनी चाहिए। ఇంగోడు ఉన్నాడు హుజరాబాద్ పిచ్చోడు వాడేం మాట్లాడతాడో వాడికి అర్థం కాదు. ఆ అసెంబ్లీలోకి వస్తేనో అరుస్తూ ఉంటాడు, ఎందుకు అరుస్తాడో తెలియదు. చప్పట్లుగా వచ్చి డాన్సులు చేసే సంస్కృతి అంతకుముందు ఇందులో లేకుండా అసెంబ్లీలో పోడియం దగ్గరకు వచ్చి అరిసేవాళ్ళు. కానీ ఆ సంస్కృతిని ప్రవేశపెట్టిన గొప్ప వ్యక్తి ఎవరైనా ఉన్నారంటే మరి హుజరాబాద్ ఎమ్మెల్యే। सीनियर बीआरएस एमएलए टी हरीश राव की गिरफ्तारी के बाद हैदराबाद पुलिस ने पार्टी के मजीद अराकीन असेंबली बशमूल पी कौशिक रेड्डी, जी जगदीश रेड्डी, के प्रभाकर रेड्डी और कई दीगर अराकीन को गिरफ्तार कर लिया। जगदीश रेड्डी और दीगर लीडरान ने कौशिक रेड्डी से मिलने की कोशिश की थी, लेकिन इन्हें रोक दिया गया।
और बाद अज़ां इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद कौशिक रेड्डी को भी गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। बीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव जो कोची में हैं, इन्होंने इन गिरफ्तारियों की शदीद मजम्मत की। इन्होंने कहा कि हरीश राव, जगदीश रेड्डी और दीगर बीआरएस लीडरों की फौरी रिहाई हो। इन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में हुकूमत के अधूरे वादों पर सवाल उठाने वाले, इंसाफ मांगने और यहाँ तक कि अपनी परेशानियों का इजहार करने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है। कबलजी पुलिस ने हरीश राव को इस वक्त गिरफ्तार कर लिया था जब वो कौशिक रेड्डी की रिहाइशगाह पर इनसे मुलाकात के लिए पहुंचे थे। साबिक रियासती वजीर और बीआरएस के रुकन असेंबली टी हरीश राव को तेलंगाना हाई कोर्ट से राहत मिली है। पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में इनके खिलाफ दर्ज एक केस के मामले में अदालत ने इन्हें गिरफ्तार ना करने के अहकाम जारी किए हैं। अलबत्ता ये कहा गया है कि पुलिस तहकीकात जारी रख सकती हैं। इसके लिए हरीश राव को ताउन करने का मशवरा दिया गया। इसके अलावा हरीश राव के खिलाफ दरख्वास्त दाखिल करने वाले चक्राधर गौड को नोटिस जारी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी गई है। वाज़ेह रहे कि हैदराबाद के पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में एक ताजिर की जानिब से की गई शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। हरीश राव ने इस केस को मनसूख कर देने का मुतालबा करते हुए हाई कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की थी, जिस पर समाअत के बाद अदालत ने यह अहकाम जारी किए। बीआरएस रुकन काउंसिल कविता ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत बीआरएस कायदीन और कैडर को गैर जमहूरी तौर पर गिरफ्तार कर रही है। इससे हमारी ताकत के तई हुकूमत का खौफ आया होता है। हमारे कायदीन की गिरफ्तारी पर हम खामोश नहीं रहेंगे। बीआरएस तेलंगाना की आवाज़ है और ये अवाम में रचती और बसती है। हमारा कैडर हमारी ताकत है। हम धमकियों के आगे नहीं झुकेंगे और तेलंगाना के अवाम की उमंगों और तवक्कुआत के मुताबिक आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। टी हरीश राव की गिरफ्तारी की इत्तला मिलते ही कलवाकुंटला कविता फौरी तौर पर गच्चीबौली पुलिस स्टेशन पहुंची और हरीश राव से मुलाकात की। Today in Telangana, there is a situation where it feels like an emergency has been imposed in Telangana state. Our MLAs, BRS party MLAs, when they go to the police station to give a complaint on certain issues that they had, the police has refused to take the complaints. When the honorable MLA who took the appointment of the SHO and went to the police station, his complaint was not entertained. The MLA had ascertained his rights, and as a result, today the MLA has been taken into arrest and he has been put illegal cases on him. We are demanding this government. This is not correct. If an honorable MLA has something to say, if there is a complaint to be given, it has to be entertained. If an MLA's complaint is not entertained, what about the common people of Telangana? That is the question today people of Telangana have in their heart. We are condemning this act of the government. We are demanding that the cases put against our MLA should be immediately withdrawn, and the preventive arrests of more than 10 Telangana MLAs, BRS MLAs today, they should be immediately released. This is our demand, and this really looks like an emergency imposed. When they told us Indirama Rajyam is going to come back, we thought it will be a decent, the people of Telangana had strong belief in them that there will be good governance. But today it is nothing but the emergency. We severely condemn this. Thank you. Jai Telangana. तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के नए चेयरमैन के तौर पर साबिक IAS ओहदेदार बी वेंकटेशम ने अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। इन्होंने हैदराबाद के नामपल्ली में वाक़े कमीशन के दफ्तर में आज ये जिम्मेदारी संभाल ली। इस मौके पर कमीशन के अरकान और अमले ने इन्हें मुबारकबाद पेश की। साबिक चेयरमैन महेंद्र रेड्डी की मुद्दत ख़त्म होने के बाद हुकूमत ने बी वेंकटेशम का नाम गवर्नर को तजवीज़ किया था। गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने इनकी तकर्रुरी की मंजूरी दे दी, जिसके बाद TGPSC का चेयरमैन मुंतखब किया। कांग्रेस पार्टी में आज BRS और BJP के कई अहम कायदीन शामिल हो चुके हैं, जिनमें BRS के साबिक MLA आतराम सिक्कू और BJP के साबिक लोकसभा MP स्वयं बापूराव शामिल हैं। तेलंगाना PCC के सदर
महेश कुमार गौड़ ने गांधी भवन में इन कायदीन का कांग्रेस खंडवा पहनाकर इस्तकबाल किया। इस मौके पर आतराम सिक्कू और स्वयं बापूराव ने कहा कि कांग्रेस के गरीब आवाम के लिए शुरू किए गए फलाही प्रोग्राम इनके इलाकों में की जाने वाली तरक्की के लिए मुफीद हैं। इन्होंने कहा कि कांग्रेस के ज़रिए आवाम तक इन स्कीमों को बेहतर तरीके से पहुंचाने के लिए वो पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 के प्रीमियर शो के दौरान हैदराबाद के आरटीसी एक्स रोड पर एक थिएटर में भगदड़ मच गई, जिसमें एक खातून की मौत हो गई जबकि इसका बेटा जख्मी हो गया। अदाकार फिल्म की स्क्रीनिंग देखने के लिए आरटीसी क्रॉस रोड पर वाक़ संध्या थिएटर आए थे। जैसे ही अदाकार थिएटर में दाखिल हुए, फिल्म का प्रीमियर शो देखने के लिए जमा होने वाले मद्दाहों ने अदाकार के करीब जाने की कोशिश की। इस मुकाम पर पहले से तैनात पुलिस हरकत में आ गई और हुजूम को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज किया। इस दौरान हंगामा आराई में भगदड़ मच गई, जिसमें एक खातून और एक लड़का नीचे गिरकर जख्मी हो गए थे। पुलिस ने जख्मियों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया, जहां इन्हें इब्तिदाई तिब्बी इमदाद देकर अस्पताल मुंतकिल किया गया। इलाज के दौरान खातून फौत हो गई और लड़के की हालत तशवीशनाक है। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुलिस ने प्रवास के दौरान एयर होस्टेस के साथ बदतमीजी करने वाले एक मुसाफिर को गिरफ्तार कर लिया। इस मुसाफिर ने बेंगलुरु से प्रवास की थी और दौरान प्रवास इसने कानगी एयरलाइन की एयर होस्टेस के साथ बदतमीजी की। एयर होस्टेस ने इस बारे में आरजीआई एयरपोर्ट की सिक्योरिटी और एयरलाइंस के हुक्काम को इत्तला दी, जिन्होंने इस शख्स को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस की जानिब से शिकायत दर्ज की गई और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। हैदराबाद में एक अफसोसनाक कत्ल की वारदात पेश आई। चादरघाट के इलाके में दो दोस्तों मुस्तफ़ा और अलीम के दरमियान मुबैना तौर पर चर्च के मामले पर झगड़ा हुआ। ये झगड़ा इतना शिद्दत इख्तियार कर गया कि मुस्तफ़ा ने अलीम पर पत्थर से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में अलीम की मौत वाक़ई हो गई। पुलिस ने मुलजिम मुस्तफ़ा को हिरासत में ले लिया है और मामले की तहकीकात जारी है। ये वाक़या शहर में बढ़ते हुए नशा आवर अशिया के इस्तेमाल और इनके संगीन नताइज की निशानदेही करता है। तो शाम में करीब 5:46 शाम के टाइम में हमारे को 100 में फ़ोन आया। तो ये आजमपुरा क्लॉक टावर नया क्लॉक टावर इनाग्रेशन वहाँ क्लॉक टावर पास कुछ मटर ऊपर को बोले। तो इमीडिएटली हमारा पेट्रोल कारू बीसी हमारा ऑफिसर्स इमीडिएटली वहाँ पहुँच गए। तो वहाँ देखे तो एक दग्गर उसका नाम अखिल बोल के उन्होंने दग्गर है उसको मर्डर करे बोल के कोई आदमी फ़ोन कर दिया। हमारा आदमी स्पॉट पे पहुँच गया। तो डेड बॉडी वहाँ दिख रहे। डेड बॉडी पूरा हमारा वो आजू बाजू पूरा वो बैरिकेड लगा देगी, किसी को नहीं आने देते उसको। माना उसके बारे में चीज़ की हमारा से वेरीफाई करने के बाद इमीडिएटली एक सस्पेक्ट हमारा पास एक मुस्तफ़ा बोल के मुस्तफ़ा इज हमारा पीएस में सस्पेक्ट है। एक्चुअली उन्हीं उसको मदद करे बोल के क्लियरली एस्टैब्लिश है। इसकी वजह से हम लोग जब पार्टी बना के जस्ट आधा घंटा 40 मिनट्स में हमारा डीसी साहब का इंस्ट्रक्शन के हिसाब से इमीडिएटली पार्टी बनाने के बाद आजू बाजू इंक्वायरी कर तो आजू बाजू वेरीफाई करे तो वो आदमी डर गए। अब राइट नाउ इज अवर कस्टडी। रीज़न क्या है बोले तो एक्चुअली ये इंतकाल हो गया ना, उसका नाम अखिल बोल के। अखिल उसको बहुत गंदे गाली दे रहे थे उनके माँ बाप के बारे में गाली रहे। इसको वजह से मैं बर्बाद नहीं हो सर, मैं बर्बाद नहीं उसको वजह से उसको मदद करे बोल के बोल रहे सर। इसके बारे में अब इन्वेस्टिगेशन अभी स्टार्ट हुआ और इसके पीछे और कोई है क्या बोल के हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। और एक इज और सस्पेक्ट है माना पुराना 2-3 केसेस है
लास्ट रिसेंटली भी उन्हें NDPS केस में उन्होंने जेल भी जाके आए, रिसेंट उन्होंने जेल से बाहर आए। ओके, थैंक यू। फडणवीस महाराष्ट्र के नए वजीर आला, 2 नायब वज़राए आला की आज़ाद मैदान में हलफ बर्दारी तकरीब। हरीश राव समेत BRS के कई अहम कायदीन गिरफ्तार। पुलिस स्टेशन में गड़बड़ करने के इल्जाम में BRS रुकन असेंबली कौशिक रेड्डी को रिमांड। 9वीं जमात के 3 तलबा के हमले में एक टीचर की मौत। AP के रायचूटी गवर्नमेंट उर्दू मीडियम हाई स्कूल में अफसोसनाक वाकया। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन की हैसियत से वेंकटेशम ने लिया जायजा, कमीशन को शफाफ बनाने का किया अज़म। BRS और BJP के अहम कायदीन की कांग्रेस में शमूलियत। PCC सदर महेश कुमार गौड़ ने किया खैर मख्तम। ये थी एतमाद की खबरें। आज का खबरनामा यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। दोबारा कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त।